अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज की हमारी क्लास है सबक नंबर 20। आज सबक नंबर 20 पढ़ेंगे। आज का सबक शुरू करने से पहले एक मरतबा पिछले सबक को दोहरा लेते हैं। चलिए अब्दुल्ला, बताइए सबक में क्या बताया था हमने। इस सबक का कायदा बताइए और फिर ये वाला पढ़िए कि अगर तजवीज के आगे हमजा, हा, आइन, आ, गैन, खा हो तो उसे उसमें गुन्ना नहीं करेंगे। तजवीद नहीं, तनवीन। तनवीन। तनवीन, तजवीद नहीं। तनवीन के बाद या नून साकिन के बाद, नून साकिन भी है, नून साकिन। चलिए पढ़कर बताइए। तैरन अबाबीला, रॉ पर जबर है, मोटा करके पढ़िए। तैरन अबाबीला, नून की आवाज को नाक में रोकने को ही गुन्ना कहते हैं। तैरन अबाबीला, नाक में नहीं रोकना है, तैरन अबाबीला, मोटा करिए। तैरन रन, तैरन अबाबीला, तैरन अबाबीला, इस तरह। आगे वाला पढ़िए। नारुन हामिया, तुन, नारुन हामियतुन, नारुन हामियतुन, नबा। कायदा बताइए, पढ़िए। मोहम्मद हम्माद, कैमरा क्यों ऑफ है आपका? कहना क्यों पड़ता है? आपको मालूम नहीं है क्लास में कैमरा ऑन रखना है? चलिए नबा बताइए। अगर तनवीन या नून साकिन के बाद हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा में से कोई भी आएगा तो फिर नाक में आवाज नहीं रोकेंगे। जी, तनवीन किसको कहते हैं? दो जबर, दो जेर, दो पेश को तनवीन। जी, पढ़कर बताइए इसको। लिमन खशिया, बहुत अच्छा। मिन गैरिही, भाई इनको मोटा करेंगे, थोड़ा और मोटा कीजिए। मिन गैरिही, बहुत अच्छा। अशहद, चलिए बताइए। कायदा बताइए पहले। सर अगर जबर के बाद नून हो या फिर दो पेश, दो जेर या फिर दो जबर हो तो मतलब उनमें गुन्ना करता है। इसके बाद दो जबर, दो जेर और दो पेश। साफ बताइए क्या कह रहे हैं आप? सर अगर दो जबर, दो जेर और दो पेश के बाद नून होता है तो गुन्ना करते हैं उसमें। दो जबर, दो जेर, दो पेश के बाद नून नहीं, हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा। अभी ऊपर दो बच्चों ने बताया, आपने सुना नहीं? एक तो आपने याद नहीं किया, ऊपर से तवज्जो भी नहीं है सबक में। किस तरह पढ़ पाएंगे इस तरह आप? तनवीन या नून साकिन के बाद हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा, इनमें से कोई हर्फ होगा तो नून की आवाज को, जो तनवीन के अंदर भी होती है और नून में तो होती ही है, तनवीन की आवाज को या नून की आवाज को नाक में नहीं रोकना है। चलिए पढ़कर बताइए। यौमइज़िन अलैमा, अलैहा, फिर से बोलिए। यौमइज़िन अलैहा जी, मिन
منه خطابا تا کے اوپر تا کو موٹی آواز سے پڑھتے ہیں اور با کے اوپر دو زبر ہے. دو زبر کی آواز نون کی آواز کی وجہ سے ہوتی ہے, ہم نے بھی بتایا تھا. ویسے ہی پڑھیے جیسے لکھا ہوا ہے ابھی. منه خطابا. جی چلیے ہم آپ بتائیے. سر تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر حمزہ آ عین ہا غین خا آتا ہے حمزہ تو وہاں آ پہ غنہ نہیں, کرنا حمزہ ہا. حمزہ ہا. حمزہ ہا عین ہا غین خا کے بعد اگر اس کے بعد آئے گا تو سر وہاں پہ غنہ کریں گے. غنہ نہیں کریں گے. غنہ غنہ نہیں مطلب کریں ہوتا ہے نون کی آواز کو ناک میں روکنا, تو ہم یہاں پہ ناک میں نہیں روک رہے ہیں نہیں نون کی آواز کو. چلیے پڑھ کر بتائیے. من عین آنیت. جی تو یہاں پہ جو ہم نے رول آپ نے جو بتایا ہے وہ کہاں پر ہو رہا ہے بتائیے. سر یہاں پہ نون, جہاں پہ نون کے نیچے یہ پہلے تو نون کے نیچے جو تنوین ہے نا یہاں پہ, اور لاسٹ میں تا کے نیچے جو ہے تا کے نیچے تنوین ہے, اس کے بعد وہ حروف کہاں ہیں؟ سر اس سے پہلے ہو رہا ہے نون کے نیچے جو ہے یہاں پر اور یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد عین ہے, یہاں اور یہاں. چلیے یہ والا پڑھ کر بتائیے. کفواً احد. یہاں پر فا کو آپ نے لمبا کیا ہے, کیوں؟ سر نہیں, پھر سے پڑھیے. کفواً احد. جی اریبا قاعدہ بتائیے. سر تنوین یا نون ساکن سے پہلے اگر پہلے حمزہ نہیں عین بیٹا, بعد میں. تنوین یا نون ساکن کے بعد میں. حمزہ عین غین ہا خا میں سے کوئی بھی حرف آئے تو اس کو ناک میں نہیں روکیں گے. جی تنوین یا نون ساکن کے بعد. ٹھیک ہے چلیے پڑھ کر بتائیے یہ والا. فمن عفیہ. عین کو صاف بولیے, گلے میں زور لگا کے. فمن عفیہ. فمن عفیہ. ارشان آپ بتائیے. سر تنوین کے بعد سر تنوین کے بعد عین غین ہے حمزہ الف یا الف نہیں, حمزہ ہا عین ہا غین خا. یہ کیا بدتمیزی ہے محمد ارشد؟ جی ان کے بعد سر عین غین ہے حمزہ ہا یا ہوتا ہے تو سر انہیں ناک میں نہیں روکتے. جی یا نہیں ہے اس میں. تنوین یا نون ساکن کے بعد حمزہ ہا عین ہا غین خا, ان میں سے کوئی بھی حرف آئے تو نون کی آواز کو ناک میں نہیں روکیں گے, تنوین کی آواز کو ناک میں نہیں روکیں گے. پڑھیے. من آخیہ. من آخیہ. من اخی خا یا زرقی. من اخیہ. من اخیہ. جی طبیبہ. اگر عین ہا غین ہا اور تنوین کے, اگر تنوین کے بعد عین ہا غین ہا اور الف حمزہ تو ان کو ناک میں روک کے نہیں پڑھتے. نون کی آواز کو پوری بات جی بتائیے صاف. نون کی آواز کو ناک میں نہیں روکیں گے, اور نون کی آواز تنوین میں بھی ہوتی ہے اور نون ساکن میں تو ہوتی ہی ہے. جی چلیے اس کو پڑھیے. من اخیہ. اس کے اوپر کیا ہے؟ الف زبر.
जबर को लंबा करते हैं? नहीं। तो आपने लंबा किया, फिर से पढ़िए। मिन आखिया ही हा ही मिन अखीही, मिन आखिही। अलग से पढ़ोगी तो ये लंबा हो जाएगा, इसको खा के साथ ही बोलो एकदम। मिन अखी, मिन अखीही। मिन आखिही। जी। वानिया, कायदा बताइए। जी सर, अगर तनवीन या नून साकिन के बाद हमजा हा आइन हा गइन खा में से कोई हर्फ आए तो इसे बिला गुन्ना के पढ़ते हैं। जी, अस्का आप पढ़कर बताइए इसको। मन अजीना। बहुत अच्छा। चलिए आज का सबक देखते हैं। इख्फा, पिछले सबक में हमने पढ़ा था इजहार। इख्फा इजहार का बिल्कुल उल्टा होता है, हर तरीके से बिल्कुल उल्टा। इसका मतलब भी यही है और पढ़ने में भी उसका उल्टा होता है। इजहार में हमने पढ़ा था कि नून की आवाज को नाक में नहीं रोकना है, गुन्ना नहीं करना है। इख्फा में हम पढ़ेंगे नून की आवाज को नाक में रोकना है और गुन्ना करना है। अब देखिए, तनवीन या नून साकिन के बाद, तनवीन आप समझ गए हैं, दो जबर को भी तनवीन कहते हैं, दो जेर को भी और दो पेश को भी तनवीन ही कहते हैं। तनवीन के बाद या नून साकिन के बाद, नून साकिन मतलब नून पर सुकून, तनवीन के बाद आप रिपीट करेंगे साथ में, अरीबा सब लोग। तनवीन या नून साकिन के बाद ता, सा, जीम, दाल, जाल, जा, सीन, शीन, सौद, ज़ौद, तो, ज़ौ, फा, कौफ, काफ, ये 15 होते हैं। इन हरूफ में से अगर तनवीन या नून साकिन के बाद कोई भी हर्फ आए, कोई भी हर्फ अगर तनवीन या नून साकिन के बाद इन 15 हरूफ में से आएगा तो नून की आवाज को गुन्ना करके पढ़ते हैं। तो नून की आवाज को गुन्ना करके पढ़ते हैं। गुन्ना मतलब होता है आवाज को नाक में रोकना। तो नून की आवाज को हम नाक में रोक कर बोलेंगे। करना कैसे है इसको आगे देख लेते हैं, मश्क इसकी है आगे। अंता, रिपीट कीजिए साथ में अच्छे से, और आवाज से आप लोग बोलेंगे तो अच्छे से आपको याद होगा। अंता, देखिए नून साकिन है, नून साकिन के बाद ता है, नून साकिन है, नून साकिन के बाद ता है, और ता हुरूफ इख्फा में है हम्माद। ता हुरूफ इख्फा में है, नून की आवाज को नाक में रोकेंगे फिर बोलेंगे अंता, मुनज़िरु, नून साकिन है, उसके बाद जाल है, जाल भी हुरूफ इख्फा में है, यहाँ पर भी नून की आवाज को नाक में रोकना है। मुनज़िरु, अंता मुनज़िरु, किरामन कातिबीना, फोटो को भींचना नहीं है अरीबा, फोटो को बिल्कुल भींचना नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा खुला रखना है। किरामन कातिबीना, यहाँ देखिए मीम के ऊपर दो जबर की तनवीन है। तनवीन वाले सबक में हमने ये भी पढ़ा था कि दो जबर की तनवीन के बाद अलिफ लिखा होगा, लेकिन स्पेलिंग में हम उसको नहीं पढ़ेंगे। मीम अलिफ दो जबर नहीं बोलेंगे, मीम दो जबर।
तो यहाँ पर दो जबर की तनवीन है, तनवीन के बाद काफ हरूफ इख्फा में है, इसलिए तनवीन में जो नून की आवाज है उस नून की आवाज को नाक में रोकेंगे, फिर पढ़ेंगे मन का। पढ़िए किरामन कातिबीन। आगे देखिए कुन्तु, नून साकिन है, नून के ऊपर सुकून है, नून साकिन है, और नून साकिन के बाद ता हरूफ इख्फा में है, नून की आवाज को नाक में रोकेंगे और फिर पढ़ेंगे कुन्तु 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 तुराबन। रॉ पर जबर है, मोटा भी करना है। कुन्तु तुराबन, मोहम्मद अशद तवज्जो से पढ़िए कुन्तु तुराबन। पढ़िए आगे वाला हर्फ देखिए मीम, दो जबर हैं, दो जबर की तनवीन में अलिफ लिखा होता है जो लिखा है, तनवीन के बाद फा हरूफ इख्फा में है, नून की आवाज जो तनवीन के अंदर है नाक में रोकेंगे उसको और फिर पढ़ेंगे। इसमें एक चीज और समझ लीजिए, सबके अंदर कायदा कब बनता है, जब कायदा कब बनता है, जब तनवीन के बाद या नून साकिन के बाद हरूफ इख्फा को हम पढ़ चुके होंगे। तनवीन के बाद या नून साकिन के बाद हरूफ इख्फा को जब हम पढ़ चुके होंगे तब कायदा बनेगा, उससे पहले नहीं। मन अगर हम खाली ऐसे पढ़ेंगे इतना यतीमन, तो अभी हमने हरूफ इख्फा नहीं पढ़ा है तो गुन्ना भी नहीं करेंगे यतीमन। अब जब हम आगे हरूफ इख्फा पढ़ लेंगे तो गुन्ना भी करेंगे यतीमन फ़आवा। आगे देखिए नून साकिन के बाद हम्माद, नून साकिन के बाद दाल है, दाल हरूफ इख्फा में है, नून की आवाज को नाक में रोकेंगे फिर पढ़ेंगे मन दखलहू। मन दखलहू, खा को मोटा पढ़ना है, खा मन दखलहू। यहाँ पर लाम के नीचे दो जेर की तनवीन है, तनवीन के बाद काफ हरूफ इख्फा में है, नून की आवाज को जो तनवीन के अंदर है नाक में रोकेंगे फिर पढ़ेंगे। प्रॉपर जबर है तो इसको मोटा भी करेंगे रसूलिन करीमिन। हम्माद कैमरा ऊपर करिए थोड़ा सा, रसूलिन करीमिन। आगे देखिए रा के ऊपर दो जबर की तनवीन है, दो जबर की तनवीन के बाद अलिफ होता है इसलिए अलिफ यहाँ पर है, तनवीन के बाद जाल हुरूफ इख्फा में है, नून की आवाज को जो तनवीन के अंदर है नाक में रोकेंगे फिर पढ़ेंगे। रा पर जबर है तो रा को मोटा भी करेंगे नारन ज़ाता। नारन ज़ाता। हम्माद पढ़ नहीं रहे हो तुम, नारन ज़ाता। आगे वाला देखिए, बाकी ऊपर दो पेश की तनवीन है,
तनवीन के बाद फा हुरूफ इख्फा में है, तनवीन में जो नून की आवाज है उसको नाक में रोकेंगे और फिर पढ़ेंगे किताबुन फीही, किताबुन फीही। यहां पर देखिए नून साकिन है, नून साकिन के बाद फा हुरूफ इख्फा में है, पीछे फा तनवीन के बाद था, यहां देखिए तनवीन के बाद, और यहाँ पे नून साकिन के बाद है। तो तनवीन के बाद हो चाहे नून साकिन के बाद हो, दोनों में कायदा जो रूल है हमारा सेम काम करता है। नून साकिन के बाद अगर हुरूफ इख्फा में से कोई हर्फ होगा तब भी वही बात होगी, तनवीन के बाद होगा तब भी वही बात होगी। तो नून साकिन के बाद फा हुरूफ इख्फा में है, नून की आवाज को हम नाक में रोकेंगे थोड़ी देर के लिए और फिर पढ़ेंगे यौमा युनफखु, अशद यौमा युनफखु, मोहम्मद अशहद यौमा युनफखु। आगे देखिए नून साकिन के बाद क़ा है, क़ा हुरूफ इख्फा में होता है, नून की आवाज को नाक में रोकेंगे फिर पढ़ेंगे, और क़ा मोटी आवाज से पढ़ा जाता है, ग़ैन भी मोटी आवाज से पढ़ा जाता है, इसलिए मोटी आवाज से पढ़ना है यहाँ पर। मन तग़ा, मन तग़ा, आगे देखिए नून साकिन है, नून साकिन के बाद सा हुरूफ इख्फा में है, नून की आवाज को नाक में रोकेंगे और फिर पढ़ेंगे। नाक में रोकने को ही गुन्ना कहते हैं आवाज को। मन सक़ुलत, मन सक़ुलत। ठीक है अरीबा, तुम पूरे होठ एकदम बंद कर लेती हो, इख्फा करने में होठ बंद नहीं करने हैं, बिल्कुल खोलना है हल्का सा। मन सक़ुलत, आगे देखिए हा के ऊपर तनवीन है दो पेश की, आगे काफ है नुक्ते वाला, मोटा भी होता है और ये हुरूफ इख्फा में है। तो नून की आवाज को जो तनवीन के अंदर है नाक में रोकेंगे फिर पढ़ेंगे फत्हुन करीबुन, काफ को मोटा करिए फत्हुन फत्हुन करीबुन, नाक में थोड़ा ज्यादा देर तक रोकिए अभी, फत्हुन करीबुन। आगे देखिए नून साकिन के बाद जा हुरूफ इख्फा में है, नून की आवाज को नाक में रोकेंगे फिर पढ़ेंगे अंज़लना, अंज़लना, अंज़लना। आगे देखिए हमजा के नीचे दो जेर की तनवीन है और उसके बाद काफ है, काफ हरूफ इख्फा में है, नून की आवाज को जो तनवीन के अंदर है नाक में रोकेंगे और फिर पढ़ेंगे शैइन 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 कदीरुन,
शैइन क़दीरुन, काफ को मोटा करिए, मुंह गोल करिए, शैइन क़दीरुन। ये था इख्फा। इख्फा के हरूफ अच्छी तरीके से याद करेंगे। हरूफ थोड़े ज्यादा हैं 15, तो आपको थोड़ा और ज्यादा वक्त देना पड़ेगा याद करने में। इनको अपनी कॉपी पर लिखिए, कायदे को, इस रूल को, और अच्छी तरीके से याद कीजिए, और साथ साथ पीछे के सभी रूल याद रखने हैं। चलिए अच्छे से याद करिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।